منڈوا کر امن و امان سے مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ اب یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد فتح مکہ بھی ہو گیا، اس آیت کا حکم بھی پورا ہو گیا۔ آیت آج بھی کہہ رہی ہے کہ تم ضرور بھی ضرور جو ہے وہ بال کتروا کر امن و امان سے مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ آج اس آیت کا کیا کرتے ہیں قادیانی؟ آیت آج بھی موجود ہے اور وہی کہہ رہی ہے جو اس وقت کہہ، حالانکہ یہ حکم پورا ہو چکا۔ آگے چلیں جی، میری بات سن لیں ڈاکٹر صاحب، سادہ سی بات ہے کہ یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے، آنے والے زمانے کے مسلمانوں کے لیے ہے، تو پھر اس میں سے نکالیں گے کیا ہے؟ صرف یہی ہے مطلب کہ آئندہ زمانہ جو ہے مسلمانوں کے لیے امن کا زمانہ ہو جائے گا، بجائے یہ کہ لڑائیاں فساد ہوتا تھا وہاں پر۔ آپ ٹھیک ہے، خود اس سے نتیجے نکال لیں نا، آپ کو خود بھی پتہ ہے۔ نکالتے ہیں، ابھی نکالتے ہیں جی، صبر کریں، ایک بار ہی سارا جواب دیجیے گا، نکالتے ہیں سارے نتیجے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آیت جی، کا موجود ہونا یہ میں نے نہیں ہے کہ ایک چیز ایک دفعہ پوری ہوگی تو اس کو جو اب ختم ہو جانا چاہیے، کچھ خیال تو کریں اس آپ ہی تو بات کا۔ آپ اعتراض تو آپ کا ہے نا کہ جب آیت کا حکم پورا ہو گیا، بات پورا ہو گیا، اب آیت وہی کہہ رہی ہے، پھر آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کیوں اعتراض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو آیت تو اس وقت بھی یہی کہہ رہی ہوگی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا؟ آپ نے کیوں اعتراض کیا ہے؟ پھر اعتراض آپ کا ہے، جب جواب دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اعتراض نہیں بنتا۔ نہیں اگلا نہیں، سن وہ لیں اس طرح سے اعتراض نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، آپ غلط سمجھے ہیں۔ اعتراض ان معنوں میں بنتا ہے کہ نبی کی نبوت اور کتاب اس کی زندگی میں منسوخ نہیں ہو سکتی۔ اور بھائی نہیں، آپ کے یہ تو ساتھی غور نے جو کریں سوال پلیز کیا تھا اس وہ بات یہ نہیں ہے، کو۔ آپ کا تھا اپنا، ایک دوسرے کا آپ کا بیان آپس میں نہیں ملتا۔ آپ کے ساتھی نے جو سوال کیا تھا وہ سب نے سنا ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ اگلا میرا جو ہے، میرا سوال ان پہ ہے، آپ اگر اس کو ایڈریس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اگلا، آپ لوگوں کی ایک بہت ڈاکٹر بڑی صاحب، آپ دلیل بناتے ہیں۔ نہیں جی جی شاید ضیاء صاحب، ابھی جو انہوں نے جملہ کہا ہے یہ بھی غیر قرآنی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ کسی کی زندگی وہ منسوخ نہیں ہو سکتی، اور جس کا وصال ہو جائے پھر اس کی منسوخ ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال فرما چکے ہیں، موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں، یہ اصول آپ نے کہاں سے لیا؟ اس لیے میں نے عرض کیا یہ آپ کی جو خواہشات، ہمیں قرآن کی آیت چاہیے ہوگی، آپ نے آیات قرآنی پیش کرنی ہے اس اصول کو بیان کرنے کے لیے، جی جی، اپنی خواہشات یہ سے اصول، اپنی یہی اصول جو ہے یہ، بات تو سنو، بات تو مکمل ہونے جی دو، جی اللہ کے چلیں کر بندے، لیں کر بات تو لیں۔ مکمل ہونے دو۔ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ پڑھ کر بتانا ہے کہ یہ جو آپ اصول بیان کر رہے ہیں یہ قرآن کی آیت سے، جیسے میں نے سورہ آل عمران کی 81 پڑھی، سورہ اعراف کی 158 پڑھی، سورہ سبا کی 28 پڑھی، اور سورہ صف کی جو 6 ہے وہاں رسالت کے منصب کا تذکرہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اکیلے ایک ہی رسالت، حضور فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، ایک ہی رسالت ہے، دوسری کسی کی رسالت و نبوت نہیں ہے۔ آپ جو بات بھی کریں، جو بھی کلیم کریں، اس کے لیے قرآن مجید کی آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر آپ آیت نہیں پڑھیں گے تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، آپ جتنے مرضی جملے لگاتے جائیں، لیکن اس کے لیے دلیل کے طور پر قرآن مجید کی آیت یا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیے گا۔ تو ابھی ہمارے یہاں مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو ڈاکٹر ضیاء صاحب جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے، میں اجازت لوں گا۔ جی، شکریہ صاحب، بہت بہت شکریہ جی۔ اویس بھائی آپ بھی متوجہ ہوں، یہ سوال میں میرا ایڈ کر لیں۔ ایک نعیم بھائی جی کا سوال ہے، ایک میرا ہے، یہ وہ جو احمد اپل صاحب آئے تھے ان سے یہ ہمارا سوال ہے۔ قادیانی ایک قرآن پاک کی آیت سے بہت بڑی دلیل مرزا صاحب کے بارے میں گھڑتے ہیں، اور بہت دن رات ہر جگہ پہ آپ کو یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ کون سے؟ وہ سورہ جمعہ کی آیات ہیں، آیت نمبر 2 اور 3، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ قادیانی اس میں ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ وآخرین منہم، کہ اسی طرح سے یہ رسول دوبارہ آخرین میں بھی مبعوث ہوں گے، جو پہلے مبعوث ہو چکے ہیں۔ قادیانی یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ رسول دوبارہ بھی مبعوث ہوں گے، اور اس سے مراد یہ لیتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے مرزا صاحب، آپ کا جو ترجمہ اور تفہیم ہے اس آیت کی، قادیانیوں کی، مسلمانوں کی نہیں ہے یہ، اس کے مطابق آپ کے مرزا صاحب اس آیت کے حکم کے تحت آ گئے، آ کے تو وہ فوت بھی ہو چکے ہیں۔ اب آیت آج بھی موجود ہے، اور آیت آج بھی کہہ رہی ہے کہ آپ کے ترجمے کے مطابق کہ آخرین میں دوبارہ مبعوث ہوں گے۔ اب اس آیت کا کیا کرتے ہیں آپ؟
جو آپ اس آیت کا کرتے ہیں وہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد ہم اس آیت کا کریں گے جس میں انہوں نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. بس یہ میرا سوال تھا، وہ آ جائیں تو ان سے کر لیجیے. ٹھیک ہے، یہ تو کلیئر، اس میں تو کلیئرٹی ہو گیا ہے. میں کچھ کہہ سکتا ہوں پلیز؟ ہاں جی شہزاد بھائی کہیں آپ. یہ سادہ سادہ سی باتیں ہیں، اس کو الجھائیں نا پلیز. میں تو سن کے حیران ہو رہا ہوں کہ انہی باتوں پہ آپ جو ہے نارمل سا بہیو کرتے ہیں ایک وقت میں، اور دوسرے میں اس کو الجھا رہے ہیں. کہ ایک بات ہے کہ قرآن کریم کی آیات تو ہمیشہ رہنے والی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. آپ ایک معنی دیتے ہیں کہ صرف یہی معنی ہے جو ظاہر پہ ممول ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اس کے بہت سارے معنی ہیں جو لوگ اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے کیا کیا معنی نکلتے ہیں. غلط غلط غلط. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ اہل علم جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ جانتا ہے، اور اہل علم جو ہے وہ آمنا صدقنا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے حق پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ اہل علم جانتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنے علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے. طویل اس کی تشریح اس کی صرف اللہ جانتا ہے. غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں آپ. ڈاکٹر صاحب ذرا ایک آپ کائنڈلی، میں بڑی آج ذرا ریکویسٹ ہے، آپ ایک بار ذرا نا وہ دوبارہ ذرا آیت رکھتے ہیں، میں سامنے ذرا میں کویشچن پوچھ لوں احمد اپل بھائی سے. اس کا جو انہوں نے بات کی تھی، دلیل دی تھی انہوں نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، تو اس وقت وہ یہ آیت پڑھیں گے. تو آپ ذرا وہ آیت آپ نے سنائی تھی وہ ذرا پڑھ دیں تاکہ میں دوبارہ ان کو سنا دوں. جی 2 آیات ہیں جی. ان کا سوال یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو چونکہ وہ جو ان کا فرمان قرآن پاک میں درج ہے مبشرًا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، اس میں جو بات ہے جو خبر ہے وہ تو پوری ہو چکی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، وہ رسول احمد آ چکے ہیں. تو ان کا سوال یہ تھا کہ اب جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو آیت پھر بھی یہ کہہ رہی ہوگی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جو کہ جس کا نام احمد ہوگا، تو پھر آپ کیا کریں گے اس آیت کا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، آیت کا حکم پہلے پورا ہو چکا ہے، لیکن آیت اب بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ ان کے بعد آئیں گے، تو کیا کریں گے؟ یہ تھا ان کا اصل میں بیسیکلی سوال. تو اس پہ میں نے قرآن پاک سے جو ہے وہ 2 دلائل پیش کیے ہیں اور ان سے اس کا جواب مانگا. پہلی دلیل یہ ہے کہ جب فتح مکہ سورہ فتح نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح مکہ کی خوشخبری سنائی ہے کہ مکہ شریف جو ہے وہ آپ لازمی فتح کریں گے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ضرور بھی ضرور جو ہے اگر اللہ نے چاہا تو مسجد حرام میں داخل ہوگے امن کے ساتھ، اپنے سروں کو بالوں کو کٹوا کر ترشوا کر، تو تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فتح مکہ کی خوشخبری سنا رہا ہے. اب مکہ فتح نہیں ہوا ابھی، اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر دے دی کہ ضرور بھی ضرور تم مسجد حرام میں داخل ہوگے امن کے ساتھ، فتح مکہ کی خوشخبری. اب اس کے بعد مکہ بھی فتح ہو گیا، یہ حکم پورا ہو گیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک بھی ہو گیا. آج 1400 سال کے بعد بھی آیت یہی کہہ رہی ہے کہ ضرور بھی ضرور تم داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا تو مسجد حرام میں اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے. آج بھی یہ سورہ اور یہ آیات جو ہیں یہ فتح مکہ کی خوشخبری سنا رہی ہیں کہ تم ضرور مکہ کو فتح کرو گے، جبکہ وہ پہلے فتح ہو چکا. ان آیات کا آج یہ کیا کرتے ہیں قادیانی؟ جو یہ ان آیات کا کرتے ہیں وہی کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہم ان آیت کا. دوسری دلیل جو کہ قادیانی بہت زور شور سے پیش کرتے ہیں، سورہ جمعہ کی آیات وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور اگلی آیت ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. اس میں قادیانی یہ ترجمہ کرتے ہیں، اس کا میں یہ مطلب لیتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے رسول وہی ہے جس نے امیین میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، آگے اس کے مزید احکامات ہیں، اور آگے ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ. اور یہ کہتے ہیں قادیانی، یہ ترجمہ کرتے ہیں اور آخرین میں بھی اسی رسول کو دوبارہ مبعوث کرے گا. یہ ہے جی قادیانی ترجمہ اور تفہیم اس آیت کی. سوال میرا یہ ہے کہ آیت آج اس آیت کے تحت آپ کہتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کے بارے میں ہے اور یہ کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں مبعوث کرے گا. اب 125 سال پہلے آپ کے ترجمے تفہیم کے مطابق وہ مرزا صاحب دوبارہ مبعوث ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، آخرین میں.
اور وہ مبعوث ہونے کے بعد فوت بھی ہو چکے ہیں. آیت آج بھی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ترجمے کے مطابق کہ آخرین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مبعوث کرے گا. اس آیت کا کیا کرتے ہیں آج آپ؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ہے وہ دوسرا سوال وہ انہوں نے کیا تھا نعیم بھائی نے, اس کا بھی انہوں نے جواب نہیں دیا کہ اس مؤود لڑکے کی جو پیش گوئی ہے وہ تو آج بھی موجود ہے کہ میرے بعد ایک مؤود لڑکا آئے گا, جبکہ وہ آ کے فوت بھی ہو چکا ہے. تو اس پیش گوئی کا آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں اس کا کمپلیٹ. جواب دے دوں پلیز. جی میں جواب دے دوں اس کا پلیز. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ہاں جی احمد صاحب بھی دے دیں, کوئی بات نہیں. میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں کہ ایک سادہ سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سال ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, آپ فوت ہو چکے ہیں, اور آپ کی زندگی میں ہی آپ نے جو پیش گوئیاں آنے والے مسیح ابن مریم کے بارے میں فرمائی تھیں اسے اپنی طرف منسوب کیا کہ ہمارے مسیح کی, ہمارے امام مہدی کی یہ نشانیاں اپنی طرف منسوب کیا ہے بار بار. حدیث پڑھ کے دیکھ لو, اس میں یہی منتج ہے. جھوٹ اور ہے. پھر کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے مادی کی یہ نشانیاں؟ یار شہزاد بھائی ٹاپک چینج ہو جانا یار, آپ کی مہربانی. شہزاد بھائی نہیں یار پلیز, یہ ٹاپک ذرا چینج ہو جانا. چینج ہو رہا. اب یہ دوسرا جھوٹ بول رہے ہیں. یہ بھی جو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہو کہ ہمارے مادی کی یہ نشانیاں ہیں. شہزاد بھائی آپ ڈائیورٹ کر رہے ہیں. ڈیرنگ بھائی آپ نہ دے جواب یار, یہ پھر نا کوسچن کنورٹ ہو جائے, ڈائیورٹ ہو جانا. شہزاد بھائی پلیز یار ایک چیز سمجھ لیں, پھر اگلی چیز پہ چلتے ہیں. احمد بھائی آپ انمیوٹ کریں. شہزاد بھائی آپ ہولڈ کر لیں آپ. کہ وہ جو آ کے شریعت محمدی کو ہی دوبارہ سے پوری دنیا میں پھیلائیں گے اور اسی کی صحیح تشریح اور صحیح عمل کروائیں گے. اب اتنی سی سادہ سی بات ہے کہ وہی تعلیم پھیلے گی, تو یعنی آنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہوا. ابھی پہلے وہ یہ تو فیصلہ کر لیں کہ حضرت عیسیٰ نے آنا کہ نہیں آنا. پہلے سوال کریں. آپ جو مطلب لیتے ہیں سوال کا آپ کو پتہ نہیں ہے, جواب آپ نہیں دیجیے. آپ کو سوال کا ہی نہیں پتا کہ سوال کیا ہو رہا ہے یہاں پر. کچھ کر رہے ہیں جواب آپ کچھ دے رہے ہیں, سوال کچھ ہے جواب یار کچھ ہے بیچ میں آپ بولنے کی عادت ہے بس. احمد علیہ السلام نے اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہ ٹاپک کا پتہ نہ سوال کا پتہ. اگر انہوں نے گفتگو نہیں ہونے دینی ہے, اگر بندے کے بچوں کی طرح گفتگو نہیں ہونے دینی ہے تو ان کی تشریف آوری آپ تھوڑی کروا دیں. کوئی مجبوری تو نہیں ہے ہمیں کہ بٹھا کے ہی رکھنا ہے آپ نے. اب وہ گفتگو چل رہی تھی, ہم سب خاموشی سے سن رہے ہیں. شہزاد صاحب آپ کو واقعی سمجھ نہیں آ رہی, واللہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. ان کو بات کرنے دیں, آپ پلیز خاموش رہیں, ہم بھی خاموش ہیں. جزاک اللہ. ویس بھائی ٹاپک پہ نا آئے, میرے ٹھیک ہے احمد صاحب آپ بات کر لیں. ٹاپک پہ نا واپس آ جائیں ویس بھائی. وہ ٹاپک پہ احمد بھائی کے ساتھ وہ اتنی دیر ہو گئی ہے بات کرتے ہیں. احمد بھائی سے وہ لے لیں یار, وہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ وہاں پہ ماحول بنا ہوا ہے, جان بوجھ کے ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. کائنڈلی نا ہم ویٹ کر رہے ہیں, ہم بھی سنیں. جزاک اللہ. مجھے 2 منٹ مل جائیں گے اگر کوئی بیچ میں نہ بولے تو. کوئی نہیں بولے گا, آپ ہی بولے. شہزاد بھائی کو میں نہیں روک سکتا, باقی آپ ان کو آپ روک لیں. شہزاد بھائی اچھا, ہماری جو بات ہو رہی تھی اس وقت اسم و آمد والی آیت پہ, شاہ صاحب تو چلے گئے وہ نا, تو بہرحال میں کوئی ٹون نہیں کرنا چاہ رہا. میں صحیح بتاؤں تو اس آیت کا جواب نہیں بنتا. چلے میں ان کے کسی پینچر کو مان بھی لوں, میں ابھی صرف مجھے 2 منٹ دے دیں, میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں, میں آگے بات بڑھاتا ہوں. احمد بھائی ایک منٹ روکیں. دیکھیں میری بات سنیں. اب آپ نے کہا میں ان کے کسی پنچر کو مان بھی لوں, میری بات سنیں. اب انہوں نے پنچر نہیں لگایا یار, انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی, اب اس کو پنچر کہہ رہے ہیں یار. احمد بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈبیٹر ہے نا, ڈبیٹر کی زبان میں قرآن و حدیث ہو, اس سے آگے سے بات کو بڑھانا یا اس کو آگے پیش کرنے کو یہ بھی پینچر کہتے ہیں. یہ الفاظ میں نے سیکھا ان سے ہے, خدا کی قسم میں نے الفاظ سیکھے ان لوگوں سے. یار پتہ کہ باتیں پھر غلط سائڈ پہ جاتی ہیں. آپ اچھا ابھی آپ بیان کریں پلیز. چلیں ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ. میں نے یہ الفاظ ویسے ان سے سیکھا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان میں. نارمل سی بات ہے, ظاہر اللہ تعالیٰ اگر جس بھی قوم میں نبی بھیجے گا تو اس قوم کی زبان میں ہی ہوگا نا, اسی قوم میں سے ہوگا کہ وہ زبان سمجھتا ہو. زبان کا ذکر ہے یہاں. اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان میں تاکہ وہ انہیں خوب کھول کر سمجھا سکے. یہ بات ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان میں. اب دیکھیں, میں فرض کریں کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے ہیں, آگے دنیا میں موجود ہیں.
अब वो कहाँ आएंगे, ठीक है, उनकी जबान सबको पता है कि हिब्रिश बोलते थे, उनकी अबरानी जबान थी, यहाँ कौन सी जबान बोलेंगे, ये सवाल है एक छोटा सा। होस्ट का समझना बहुत जरूरी है। अवैस भाई आप गौर किया करें प्लीज। मैं समझ रहा हूँ, असल में आपने ना आप डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं पता क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ पहले डेरिंग भाई को उनके सवाल का जवाब दे दें, जान छुड़वाएं इनसे, क्योंकि इन्होंने फतह मक्का पे लाके मुझे रोक दिया। इन्होंने 2 आयतें पेश की हैं, आप ये मुझे नई चीज शुरू कर देंगे ना तो पुरानी चीज मेरे दिमाग में रह जाएगी। देखें, आपने कहा कि ये बाद का जो है ये 600 साल का जो टाइम पीरियड है ये बाद हो गया, मैं मान गया। उसके बाद आपने कहा कि यार अगर वो बाद जो है, अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं तो वो बाद वो क्या कहेंगे, फिर इसके बाद कौन सा बाद होगा, मैं वो भी बात मान गया। मैंने कहा ठीक हो गई ये। अब मुझे ये बता दें कि फतह मक्का का, इन्होंने जो फतह मक्का वाली आयत पेश की है उसका क्या करना है फिर? नहीं अहमद भाई, हम उसी के ऊपर आ जाएंगे वापस। ये फतह मक्का वाली को बात को क्लियर कर लें, फिर आप मुझे जो समझाएंगे मैं समझ लूंगा। मुझे यकीन करें, मैंने खाना खाने गया था, मुझे पता ही नहीं इन्होंने कौन सी आयत पेश की है। मैं सिर्फ ये बात, अब गौर करें ना, मैं जो बात कर रहा हूँ मैंने मान ली, अगर वो कुछ कहते हैं, ठीक है, नहीं वो देखें उस बात वो ऐसे नहीं, मान वो बात जो है मैं मान लेता हूँ, जो इन्होंने जो भी समझते हैं, मैं उसी बात को आगे लेके, जैसे शाह साहब एक से दूसरी से चौथी पांचवी आयत पेश करते हैं, मैं उसी हवाले से, आपका समझना बहुत जरूरी है, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, आप गौर करें। तो पहले क्लियर करें, पहले वाली बात जो चल रही थी उसका क्या बना, क्या मान लिया आपने? ये वही मौजू है। आप कह रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, या तो कहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं, वो मौजू नहीं था हमारा, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे कि नहीं आएंगे, क्यों मौजू को डाइवर्ट कर? वो नहीं, वाली आयत का सवाल था कि आयत का क्या करना है। अहमद भाई आप कह रहे थे आप ये कह रहे थे कि जब बाद हो गया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आप सल्लम 600 साल के बाद आए और ये बाद अब कंप्लीट हो गया, तो आपने फिर ये क्वेश्चन मार्क रखा कि अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे। हमारे मुताबिक हम कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे, जब वो आएंगे तो यही आयत पढ़ेंगे कि मेरे बाद एक और इस मोहम्मद आएगा, तो फिर क्या होगा, देन व्हाट हैपन। आपने ये क्वेश्चन राइज अप किया था, उसका जवाब डॉक्टर डेरिंग भाई ने एक कुरान की आयत सुनाई जिसके अंदर उन्होंने कहा कि फतह मक्का की जो अल्लाह ताला ने कहा था कि फतह मक्का होगा, ठीक है, उस वक्त वो, अब तो वो हो गया, वो टाइम गुजर चुका, अब आज उस आयत को क्या होगा? मुझे तो वो आयत का नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि बहुत सारी ऐसी 1, 2, 10, 19, 100 सैकड़ों ऐसी आयत हैं जिनको इसी तरह पेश किया जा सकता है जिस तरह डॉक्टर पेश कर रहा है। तो इस तरह तो कोई देखें, तो फिर इसका मतलब अगर ऐसे सैकड़ों आयतें ऐसे पेश की जा सकती हैं, तो फिर जो आपने आयत दी है कि बाद में वो क्या कहेंगे, तो इसका मतलब फिर आपस में तो क्रॉस हो गई, फिर तो इसका कोई मतलब वहां पे तो कोई। वैसे मैं इसलिए कह रहा था कि होस्ट का समझना बहुत जरूरी है। अगर होस्ट खुद समझेगा, कभी किसी रसालत की भी लौट के आई, ये नबी की बात हो रही है, रसालत की बात हो रही है, अपनी उम्मत को पैगाम दिया जा रहा है कि मेरे बाद, तो कभी किसी नबी की रसालत भी टूटी है कि वो दोबारा आया हो, रसालत को दोबारा आके वो रसालत मुकम्मल हो जाए, फिर वही आके दोबारा आयत पढ़े। ये फतह मक्का या जंग का वाकया नहीं है, नबी ये फरमा रहा है अपने आने वाले नबी के बारे में, दूसरा जो नबी आएगा, अजीम रसूल की पेशेंट की है। इसमें तो इसमें कोई ऐसी चीज शामिल की बढ़ाई नहीं जा सकती ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो जो नबी है वो पहले कहता है कि मेरी रसालत कंप्लीट हो गई है और अब मैं प्रेडिक्शन करता हूं कि मेरे बाद एक, ये बात कह रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। उनकी रसालत जो थी उस वक्त मुकम्मल हो गई, उन्होंने यानी उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी कौम को, जो बनी इसराइल की तरफ थे, उनको फरमाया था कि पेशन गोई की थी कि मेरे बाद एक रसूल आएगा। ये अल्लाह ताला फरमा रहा है, तो ये कोई आम वाकया नहीं है किसी जंग का या किसी साहबी का, ये इस तरह का वाकया नहीं है, वो एक नबी का बयान है। ये मैं वर्ड ले लेता हूँ, मैं डेरिंग भाई से ना ये वर्ड ले लेता हूँ, एक बैठा जाए यार। रिया भाई ये अभी कह रहे हैं कि उसके अंदर वो जो आयत है उसके अंदर वो ये है कि मैंने अपनी रिसालत कंप्लीट की, अब मेरे बाद जो है वो एक और नबी आएगा। रिसालत कंप्लीट की कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा है अहमद भाई रिसालत कंप्लीट? ये बातें जो होती है ना, रिसालत क्या उनकी रिसालत को अधूरी रह गई थी, उन्होंने कहा था रिसालत में दोबारा लेके आऊंगा। रिसालत कंप्लीट का मतलब यही है कि उन्होंने तस्दीक की अपनी सारी किताबों की, मैं दोबारा अभी तो माय गुडनेस। देखिए अहमद भाई, अभी आप कह रहे थे कि रिसालत कंप्लीट हो गई, उन्होंने मैंने आपको तशरीह करके बताया कि मेरी रिसालत कंप्लीट हुई और मेरे बाद अब एक और नबी आएगा। तो रिसालत कंप्लीट फिर कैसे, मतलब ये प्रेडिक्शंस में हमने किया है या हमने सियाको सवाक से किया या तवील निकाली है, क्या किया हमने यहाँ पे? इसकी तवील निकाली है अपनी तरफ से, ये बात है अपनी तरफ से नई बात गढ़ी जा रहे हैं। हाँ तवील, जी मैंने तवील ये की है, जाहिर है मैंने अगर किसी भी आयत की तफसीर करें तो उसका मफहूम तो समझना पड़ता है ना। उन्होंने अपनी कौम को कहा कि ये जो पहले किताबें आ चुकी हैं मैं इनकी तस्दीक करता हूँ, ये सारी सच हैं। ये आयत का मफहूम है, ये तफसीर भी आप समझ लें। कुरान में तो नहीं है कि, कुरान में तो नहीं है ना। देखिए अब आप जिसके साथ रद्द कर रहे हैं इस चीज को, आप अहमद भाई जिससे रद्द कर रहे हैं कि रसालत कंप्लीट हुई, ये जो रद्द कर रहे हैं इसका मतलब इसका कुरान में तो कहीं जिक्र नहीं है ना।
میں آپ سے پوچھتا ہوں، ڈیرنگ بھائی سے پوچھتا ہوں، کسی اور سے پوچھتا ہوں، کیا جو ان کی رسالت تھی، جو ان کے اوپر پیغام پہنچانا تھا، وہ مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ مجھے اتنا بتا دیں۔ وہ مکمل ہوا کہ نہیں ایک ہوتا ہے کسی پر پیغام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو پیغام پہنچانا، ان کو شریعت دینا یا جو احکامات ہیں وہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کی رسالت مکمل ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی نبوت رسالت مکمل ادھوری بھی ہوتی ہے، نبوت جو بھی ان کی رسالت کوئی ادھوری بھی ہوتی ہے۔ ہاں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دوری نہیں، وہ اپنی زندگی میں جو انہوں نے پیغام پہنچانا تھا پہنچا کے چلے گئے، اب اس میں پکڑ کے نہ بیٹھے، الفاظوں کو نہ پکڑے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے جو پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا، اس پہ پھر کیا مسئلہ بن گیا آپ کو؟ لیکن آپ کہتے ہیں وہ چلے نہیں گئے، وہ یہی ہیں چوتھے آسمان پہ یا دوسرے آسمان پہ، یہی ہاں تو ہمارا ٹھیک ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ڈیرنگ بھائی ایک منٹ، ڈیرنگ بھائی رک جائیں، ڈیرنگ بھائی یہ میں بتاتا ہوں، ڈیرنگ بھائی انہوں نے مجھے جب کہا نا، میں نے کہا کہ بعد والا مسئلہ ڈیرنگ بھائی اصل میں دیکھیں، اصل میں جب میں نے ان سے پوچھا نا کہ وہ جب آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ ان کی تو رسالت کمپلیٹ ہو چکی ہے، تو وہ جب آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے اپنی رسالت کمپلیٹ کی اور میرے بعد ایک اور، تو یہی آیت وہ دوبارہ کیسے پڑھیں گے؟ تو انہوں نے کمپلیٹ والی رسالت کی جو بات کی نا وہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اب میں وہاں پہ رکا ہوں، میں ان سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں احمد بھائی سے کہ وہ رسالت والی بات تو ہے ہی نہیں، جب تو اس میں پھر وہ آپ نے یہ ڈال، اگر آپ اس کو یہ فکرہ اٹھا لیتے ہیں یہ والا رسالت والا، تو پھر جواب پھر وہی والا کہ فتح مکہ والی جواب دے دیں، کیونکہ رسالت والا ورڈ تو آپ نے خود ڈالا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے خود ڈالا ہے اس کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں احمد بھائی، تو فتح مکہ کا پھر جواب دے دیں، کیونکہ رسالت کا ورڈ تو ہے نہیں۔ فتح مکہ کا جواب یہی ہے، ان کو ڈیرنگ بھائی کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، رسولاً الی بنی اسرائیل، ماضی کا صیغہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے۔ یہی رسولاً الی بنی اسرائیل میں کون سا ماضی کا صیغہ ہے؟ یہ تو ماضی کا صیغہ کہ وہ تھے، رسولاً ماضی ہے، الہ ماضی ہے، بنی اسرائیل ماضی ہے، کون سا ہے ماضی؟ نہیں تو یہ آپ کا اس کو کرینہ کیا نکالتے ہیں اس کا؟ پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ کرینے کو چھوڑیں، اس میں ماضی کون سا ہے، کون سا اس میں ماضی ہے وہ تو بتا دیں۔ اس میں کرینہ کیا بنتا ہے؟ پڑھ لے، اپنا ترجمہ پڑھ لے، میرا چھوڑ دے۔ کرینہ آ گیا، آپ کہتے ہیں ابھی آپ نے کہا یہ ماضی کا صیغہ ہے، اب آپ کہتے ہیں کرینہ ہے۔ ہاں تو مکمل جو بات ہے، پیغام جو لکھا ہے وہ یہی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے، یا آپ بتا، میں آپ کا قرآن نکال دیتا ہوں، وہاں تھے نہیں لکھا۔ یار آپ نے کہا یہ ماضی کا صیغہ ہے تو اس میں ماضی کا صیغہ تو بتا دینا، کرینے، یا تو کہتے کرینے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ ہاں جی، ثابت ہو رہی ہے کہ وہ تھے کہ نہیں، مجھے اتنا تھے کا ذکر ہے۔ جی آج ایسے کہتے ہیں کہ جی بالکل، آج ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے، لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ بات کو گھمائیں نا، اگر بات سمجھ جاتی ہے تو اس کو مشکل میں نہ ڈالیں تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ آپ بہت قرآن پاک کے الفاظ کے ساتھ کیوں کھلواڑ کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ نعوذ باللہ، ایسے نہیں گئے، میں صرف آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا اس تھا۔ کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ تھے، ترجمہ اس کا رسولان، اور وہ رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف۔ ہاں جی، تو وہ ماضی میں بھی آتا ہے، دونوں چیزیں آپ کو پتہ اچھی طرح، کہ ظاہری بات ہے کہ رسول کب تھے، اب بعد میں ہوں گے، وہ تو آ چکے ہیں نا، تو اس لیے باتوں میں الجھائے نا، وہ رسول آ چکے ہیں، رسول الی بنی اسرائیل، تو وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے۔ یہاں اس آپ کی آیت کا جواب ہے، تو یہاں بعد کا مکمل بھی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں نے جو اب آپ کو آیت پڑھی تھی وہ اسی آیت کے جواب میں وہ آیت تھی، میں نے جو اب آیت پڑھی ہے نا اس بھائی، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نبی نہیں بھیجتا مگر اس کی قوم کی زبان میں۔ اب میرا سوال تھا، یہاں تک تو ہم پہنچ گئے، جیسے انہوں نے آگے سے دوسری آیت پیش کی، میں نے بھی تیسری آیت پیش کی، یہ چوتھی آیت ہے۔ چلیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، فرض کر لیں، ویسے فرض کر لیں آ گئے، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان میں، تاکہ وہ انہیں خوب کھول کر سمجھا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دنیا جانتی ہے کہ وہ عبرانی زبان بولتے تھے، ہیبرش بولتے تھے، اب وہ کون سی زبان میں آ کے دنیا سے کلام کریں گے؟ چلیں میں آگے بڑھا دی بات ان کی آسانی کے لیے۔ نہیں آسانی نہیں ہے یہاں، تو اس کو پھر ایڈمٹ کریں وہاں سے جو آپ میں ایڈمٹ کرتا ہوں آگے نہیں بڑھانے، ہم نے سوال کیے ہیں، ان کے جواب وہ دیے کہہ رہے ہیں بغیر آگے نہیں جانا۔ وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں، وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں، میں ایڈمٹ کر رہا ہوں، آگے نہیں بڑھانی، آپ مجھے جواب دے دیں، اب اس کا جواب چاہیے، کہیں ادھر ادھر نہیں جانا۔ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اب وہ اس سے بات سے یہ لاجواب ہو چکے ہیں، اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ نیچے لوگ ہنس بھی رہے ہیں اس بات پہ نا، لوگ ہنس رہے ہیں کون لاجواب ہوا ہے، آپ اس کا جواب دے دیں۔ وہ تو ظاہر ہے جی، آپ کو تو نظر آ رہا ہے نیچے لوگ ہنس رہے ہیں، انہوں نے کمنٹ بند کیے ہوئے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے لوگ ہنس رہے ہیں۔ اچھا جی، بتا دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سی لینگویج بولیں گے؟ ٹھیک ہو گیا چلیں۔ اچھا جی، یہ آپ کا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سی زبان بولیں گے؟ جی اچھا، اگر تو یہ سوال ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سی زبان بولیں گے، ایک ہے یہ سوال،
दूसरा सवाल ये बनता है कि क्या वो अपनी जो उनकी ज़बान थी उनके अलावा दूसरी ज़बानें वो समझ सकते हैं? ये दो हिस्से होते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि कौन सी ज़बान बोलेंगे, हमें ना अल्लाह ने बताया है ना अल्लाह के रसूल ने, किसी ने हमें नहीं इतला दी कि वो आने के बाद कौन सी ज़ुबान बोलेंगे। ठीक है, तो अपनी तरफ से हम यही समझ सकते हैं कि वही ज़ुबान बोलेंगे जो उनको और उनके सामने वाले मुखातबीन को समझ में आएगी। ठीक है, जवाब ये है आपको। और अगर आप ये सवाल करें कि क्या वो ज़ुबानें समझ सकते हैं, तो बिल्कुल अल्लाह ताला उनको जो है वो चाहे तो 1 सेकंड में किसी को कुछ भी समझा दे। और आपने जो सवाल किया और दलील कुरान पाक से पेश की कि जी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने कोई नबी नहीं भेजा मगर उस कौम की ज़ुबान में, यानी वो अपनी कौम की ज़ुबान जानता है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं मुझ पर उन ज़ुबानों में भी इल्हामात होते हैं जिन ज़ुबानों से मुझे कुछ वाकफियत ही नहीं, जैसे अंग्रेज़ी या संस्कृत या इब्रानी। अगर मिर्ज़ा साहब पर उन ज़ुबानों में इल्हाम हो सकता है जिन पर उनको कुछ वाकफियत भी नहीं, और वो उन इल्हामों को समझ भी सकते हैं, उनका मतलब मफ़हूम भी समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ सकते थे तो आप बता दें। तो मैं हुस्न ज़ान के तौर पे कह रहा हूँ कि वो समझ लेते होंगे। अगर मिर्ज़ा साहब समझ सकते हैं अंग्रेज़ी, संस्कृत, इब्रानी जिनसे उनको कुछ वाकफियत नहीं, ये रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 18 सफ़ा नंबर 435, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे सवाल कैसा, वो भी समझ लेंगे। शुक्रिया जी अहमद भाई। जी देखें, अल्लाह ताला ने जो इसमें बयान फरमाया है ये अल्लाह ताला का कौल है, अल्लाह ताला की सुन्नत है। अल्लाह ताला अपनी सुन्नत के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाता। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जब से अल्लाह ताला ने पहला नबी भेजा और आखिरी नबी भेजेगा, इस आयत से वाज़ह होता है कि वो उसी कौम की ज़बान बोलेगा जहाँ उतारा जाएगा, जहाँ नबी आएगा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, ठीक है, इनके मुताबिक उन्होंने उन्हीं की उम्मत में आना है। ये एक अलहदा बात है कि जब अल्लाह ताला जब अर्श पे जब इम्तिहान लेगा, पूछेगा कि हर उम्मत अपनी नबी के साथ खड़ी होगी, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भागकर रसूल के सल्लल्लाहु के पीछे चल जाएंगे, क्योंकि उनकी उम्मत में मुसलमान होकर आएंगे। अब बताएं कि उनकी उम्मत कहाँ जाएगी? हर उम्मत ने उसकी नबी के पीछे खड़ा होना है। एक अकीदे को सच करने के लिए कितनी कबाहतों के साथ ये खेल रहे हैं, कितनी गलत बयानियां कर रहे हैं। पहले एक टानी पे, फिर दूसरी टानी पे, फिर तीसरी टानी पे, एक बार छोड़ के आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे। ये कब तक करना है आपने? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप कहते हैं अल्लाह ताला अपनी सुन्नत के खिलाफ नहीं करता, अल्लाह ताला अपना जो है वो कानून नहीं बदलता, कि अल्लाह ताला ने जितने अंबिया को भेजा और अब क़यामत तक भेजेगा, आपके अल्फाज हैं, उसकी कौम की ज़ुबान में। तो मिर्ज़ा साहब तो इसमें से निकल गए, क्योंकि मिर्ज़ा साहब तो कहते हैं मुझे इल्हामात, बाज़ इल्हामात उन ज़ुबानों में भी होते हैं जिनसे मुझे कुछ भी वाकफियत नहीं, जैसे अंग्रेज़ी या संस्कृत या इब्रानी वगैरह। ओ भाई, मिर्ज़ा साहब की कौम की ज़बान तो थी पंजाबी, चले मानने को 2-4 बीच में अंग्रेज़ भी होंगे, पंजाबी कर लें। अंग्रेज़ी मिर्ज़ा साहब को आती नहीं थी, वो जो कौम थोड़ी बहुत अंग्रेज़ थी उनकी ज़बान मिर्ज़ा साहब को आती नहीं थी, और पंजाबी में मिर्ज़ा साहब के इल्हाम कोई नहीं हुए। 3 या 4 टोटल वही हैं मिर्ज़ा साहब की, निकी निकी छोटी छोटी 2-2 अल्फाज की, उसके अलावा कोई पंजाबी में मिर्ज़ा साहब पे कलाम नहीं ना। कौम की ज़ुबान है पंजाबी। मिर्ज़ा साहब अरबी में किताबें लिख रहे हैं, कौम की ज़ुबान है पंजाबी। मिर्ज़ा साहब कहते हैं मुझे संस्कृत इब्रानी में इल्हाम हो रहे हैं, कौम की ज़ुबान है पंजाबी। तो भाई आपके खुदा ने तो कानून बदल दिया, आप कैसे कह रहे हैं कानून नहीं बदल सकता? तो भाई मिर्ज़ा साहब का जवाब देते हमें, मिर्ज़ा साहब ने जो कहाँ से सारा कुछ सीख लिया। अब आप इधर से छलांग मार के चले गए हैं कि आप अगले सवाल का जवाब दे दें हमें, इससे अगले का अगला बड़ा सवाल है उसका हमें जवाब दे देंगे, पहले इसका तो कुछ कर लें। मैं बोल लूं कि अभी अब और बोलना? जी बोले, मुझे इसका जवाब दें, मिर्ज़ा साहब पर इन ज़ुबानों में कैसे लाम हो गया, मिर्ज़ा साहब की ज़ुबानें और कैसे हो गई? आप मुद्दई हैं, मैं मुद्दे लाया हूँ। आपके जो अकीदा है मैं उसका रद्द कर रहा हूँ। कुरान से एक आयत, दूसरी आयत, शाह साहब भी 10 आयतें पढ़ देते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ ये आयत, ये आप किस किस बात को झुटलाओगे, सिर्फ ये आपको सबूत दे रहा हूँ। जहाँ तक मिर्ज़ा साहब के इल्हाम की बात है, वो इस आयत से तल्लक ही नहीं रखती। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर उस कौम की ज़बान में। पंजाब में आए थे तो मिर्ज़ा साहब को बड़ी अच्छी पंजाबी आती थी, मेरे अल्लाह की आयत बड़ी शान से बुरी हुई है, तो आपने बड़ी जल्दी से कह दिया कि वो कौन सी ज़बान बोलेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, वो जो जिस कौम में आएंगे वो ज़बान बोलेंगे। नऊज़ बिल्ला, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया रहमतुल आलमीन खुद ना पढ़ सकते थे ना लिख सकते थे, उनको तो अल्लाह ताला ने ये सहूलत दी नहीं, इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि कौन सी सहूलत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दी? अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो उनको भी तो इसमें पढ़ने लिखने का सवाल कहाँ से आ गया?
नहीं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ ना। आपने कहा तो कि भाई जो वो पढ़ने लिखने का कहाँ सवाल आ गया है? अवैस भाई आप सवाल ये था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन सी जुबान बोलेंगे? अब भाग गए हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। हाँ, तो जो बात नबी की उस पे पूरी नहीं हुई तो इस तरह से पे कैसे पूरी हो जाएगी? तो मिर्जा साहब पे कैसे पूरी होगी? मिर्जा साहब को कैसे आ गया पढ़ना लिखना? मिर्जा साहब तो पंजाबी बोलते थे, जबान की मिर्जा आयत में साहब को जबान पढ़ना का लिखना जिक्र है। कैसे आ गया? यार अवैस भाई ये बात हो रही है पढ़ने लिखने वैसे की। भाई मैं नहीं, तो आप बता दे बताएं मुझे, जो सवाल मुझ पे कर रहे हैं, मिर्जा साहब को आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल समझते हैं? रहा हूं। मुझे लगता है मैं शाह साहब से बात कर लूं तो वो आसानी से समझ जाएंगे। और हमें ज़ाहिर है आप ऐसे ही करना है आपने। नहीं, मैं आपको आपकी हजरत बात ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मैं आपको कहूं कि वो समझ लेंगे सारी जुबानें, तो इतराज आपका ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पढ़ना लिखना आता था? अगर नहीं आता था तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहां से आ जाएगा? और यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मिर्जा साहब को कैसे आ गया? अब आप कहते हैं मैंने शाह साहब से बात करनी है। नहीं, शाह साहब बात समझ जाते हैं, आप समझ क्यों नहीं है? डॉक्टर साहेब, अहमद साहब जरा 2 मिनट में आपकी बात, ये मुझे 1 मिनट मोहतरम मुझे जरा बड़ा कीजिएगा, मैं इनके नहीं, अल्फाज आपने लिख 1 रहा मिनट नहीं लेना, आपने ना पूरे 10-15 मिनट ले मैंने लेने। और इनसे सवाल मोहतरम, पूछा है, बात पहले भी नहीं करें, सवाल मैं से घंटे से नहीं एक डॉक्टर सवाल साहब को 1 छोड़ के आगे मिनट चले मिनट जाते 2 हैं, ही फिर उसको लगने छोड़ हैं के आगे, फिर आगे, फिर सर, आगे। मिनट अभी इसका जवाब डॉक्टर इनसे लेना है, साहब, आप ही ले दें कि एक मिर्जा मिनट, साहब हाँ, पर ये गैर जुबानों में लाम कैसे हो गए थे? नीचे लोग ना ना जानना ना ना चाहते ना हैं। आप सुनने, सर सुनने। अहमद ओपल साहब मिनट दो नहीं, मिनट कैसे दूं? आपने मिनट दो, टाइम ला दो, टाइम ला दो। जल्दी से ना, जल्दी से एम्बुलेंस बुला साहब ने लेते हैं। कटघेरा बना लिया अहमद भाई के ना 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 नहीं, एम्बुलेंस अली भाई बुलाने 1 को मिनट काफी यार, नहीं है। साहब एक मिनट रुकिएगा। वैस भाई गुजारिश है कि ज़िया रसूल भाई तशरीफ फरमाए तो उनको बात करने दें, उनको मुकम्मल करने दें। आरिफ भाई आप पूछते हैं थोड़ी देर। अहमद साहब यहाँ से अब शातमियत करने की कोशिश करके और यहाँ से भागना चाहते हैं, लिहाजा ज़िया रसूल अमीनी भाई अवैस भाई तशरीफ मैं फरमाए, आपकी ये बात खातिर पूरी रात मुकम्मल हो बैठा रहूंगा। ये देखिए इनके नहीं, झूठे इल्जामात। ओ अहमद साहब आप यार ना यार, करें। हाँ यार, ये ऐसी अली भाई यार ऐसे वर्ड इस्तेमाल मैं करें। नहीं- मैं नहीं- बात नहीं कर रहे हैं। अली मैं भाई आपसे प्लीज, कॉन्फ्रेंट अली भाई नहीं पहले करना चाह अपने वर्ड वापस करें। अली भाई अपने वर्ड वापस करें सबसे पहले। कौन से अल्फाज मैंने ऐसा क्या किया है? ये शातमियत के क्या आपने इस्तेमाल किया कि ये शातमियत करेंगे? आप बोलेंगे मैं तब तक अपने अल्फाज वापस लेता हूं जब तक ये नहीं करेंगे। मैं अपने अल्फाज वापस मैंने लेता की हूं। भी नहीं है। अली भाई बहुत आपको शुक्रिया, पता thank है you so मेरा much, नाम है, मैं गाली नहीं देता। तो ज़िया रसूल अमीनी भाई तशरीफ फरमाए, ज़िया रसूल अमीनी भाई तशरीफ फरमाए, लिहाजा वो बात मुकम्मल कर लें। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी जी दोनों जी भाई ज़िया साहब पर भाई। थोड़ी सी तस्दीक कर लें कि ये बशीरुद्दीन महमूद साहब की तफसीर सगीर लगी है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला जो वही भेजता है ना जिस ठीक हो कौम की गया, तरफ, ठीक, उसी इशारा कौम इशारा की से जुबान नाम में वही बताएं, नाज़िल वो करता है। बात कर लेंगे। उन पे भरोसा रखिए, उनको आती है, उनको वो जरा समझदार है। होल्ड रखा करें यार, होल्ड रखा करें ना, होल्ड रखा। मैंने नहीं, दोनों दो भाइयों तीन को बंदे- कहा है, मैंने ठीक दोनों है, आप भाइयों के होल्ड लिए कर कहा है, आपके लिए भी है, उनके लिए भी है। ये दोनों भाइयों के लिए बात है कि जिस कौम की तरफ मबूस होता है उस कौम की जुबान में वही नाज़िल होती है। आपने खुद इकरार किया मिर्जा साहब की जुबान पंजाबी है, वही भी पंजाबी में नहीं हुई। वो खुदा के बंदे, वही का जिक्र ही नहीं है। मैं जबान की बात कर रहा हूँ, वही की इसलिए तो यही तो मैं कह रहा हूँ डॉक्टर डेरिंग को कि उसने वही पे ले गया है। वही की बात ही नहीं हो रही। कौम की जबान में नबी भेजता है, वो कह रहे हैं कि वो वही जबान बोलेंगे जहां आ जाएंगे। नऊज बिल्ला यार, जो सहूलत रसूल की उसको अल्लाह ने नहीं दी, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दे रहे हैं। ये मेरा सवाल है। ये तर्जुमा वही का तो बशीरुद्दीन आयत में महमूद जिक्र ही का नहीं आपके है। सामने लगा हुआ, मेरा नहीं है। और यार खुद पढ़ आयत लें, की बात स्क्रीनशॉट हो लें, पढ़ रही लें, है, इसी आयत का है। आयत पे तो बात हो इब्राहिम रही है, की। आयत पे मिर्जा तो साहब आयत का तस्मा भी तो करते हैं ना। और नहीं नहीं किसी को- नहीं आयत का नहीं तस्मा भाई भी एक तो मिनट लगा रुक हुआ है जाए, ना। नहीं भाई एक मिनट रुक जाए यार, चीजों को समझ नहीं रहा था प्लीज। ज़िया भाई देखिए, वो अहमद भाई पहले कह आयत रहे के मानी हैं तो दुरुस्त करें ना। जी। पहले आयत के मानी दुरुस्त करेंगे तो समझ आएंगे, मानी गलत करेंगे बात कहाँ से समझ आएगी। मैं यार मानी तो तर्जुमा पहले पढ़ दुरुस्त रहा करें आयत हूँ, के। आप खुद पढ़ लें तर्जुमा। और हमने कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर उसकी कौम की जबान में। वही यहाँ कहाँ से इल्हाम और वही का तो जिक्र ही नहीं है। ये सामने लिखा हुआ है, पढ़ें तर्जुमा। ये तफसीर सगीर लगी हुई है ये सामने, मेरे पास पढ़ें। कुरान है, मैं आयतें पढ़ रहा हूँ। तफसीर सगीर बाद में पढ़ लेंगे। उनके पास जवाब नहीं है तो आप दे दें जवाब, लेकिन इधर उधर से बातें ना करें। यार नहीं भाई, बात ना और तरफ चली जाएगी यार, आपकी मेहरबानी है यार, प्लीज। नहीं भाई, मैं आपसे आजिज़ाना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे डॉक्टर साहब से बात कर लेना दें प्लीज यार, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब ये इनका ये कहते हैं कि उसके अंदर वही का जिक्र नहीं है। उसके अंदर जिक्र है कि वो जिस कौम को होगा, मतलब अगर अरबिक है तो अरबिक जुबान में आएंगे, पंजाबी है तो पंजाबी जुबान में आएंगे, फारसी है तो फारसी जुबान में आएंगे। उसमें इल्हाम का जिक्र कहीं नहीं है कि इल्हाम कौन सी जुबान में। बहुत खूब, जज़ाकल्लाह वैस भाई। अच्छा आपको चलें समझ ठीक है, आया। इनकी बात को लेके चलते हैं। जी मिर्जा साहब जो है उनको इंग्लिश आती थी, इंग्लिश आती थी मिर्जा साहब?
نہیں آتی، نہیں آتی تھی. पंजाब में कौन इंग्लिश वो बोलता था? अंग्रेजों की तरफ नहीं आए, आपके अकीदे के मुताबिक वो अंग्रेजों की तरफ रसूल बन के नहीं आए? मैं पूछ अच्छा, रहा था अहमद भाई, वो अंग्रेज, अहमद भाई वो अंग्रेजों की तरफ नहीं आए? वो टेक्सास में है यार, पंजाब जहां आता है उसी की जुबान में होता है, और वो पंजाबी बड़ी अच्छी पंजाबी बोलते थे. नहीं, वो अंग्रेज इधर उधर अंग्रेज ही थे जब मिर्जा साहब आए, सारे अंग्रेज ही रहते थे इधर, मोस्टली इधर अंग्रेजों के राज मतलब अब आयत का मुकाबला शुरू हो गया है कि इसका मतलब था। आयत का मुकाबला नहीं, आपके गलत तफहीम का मुकाबला है। साफ पता चल गया, कोई जवाब नहीं है वेस भाई, कोई आपकी जवाब अब आप जवाब नहीं दे रहे। इधर अंग्रेज थे सारे, अंग्रेज के दरमियान मिर्जा साहब आए, इंग्लिश आती थी मिर्जा साहब को? कौन कहता कि वहाँ अंग्रेज थे? कादियान में, पंजाब में अंग्रेजों की आबादी थी, वो भैंसे रखते थे, दूध निकालते थे, बकरियां चराते थे. कौन से कोई नहीं अंग्रेज थे वहाँ पे थे अंग्रेज, वो अंग्रेज में थे ही नहीं। नहीं, जब आप सब आए उस वक्त हुकूमत वहाँ किसी और अंग्रेजों की हुकूमत थी जब कादियान में मिर्जा साहब थे, हुकूमत दावे का वहाँ थी, हुकूमत अंग्रेजों की थी. हुकूमत थी। इनको तारीख सबको भी पता पढ़ानी है पड़ेगी। अंग्रेजों की हुकूमत थी, सबको पता है अंग्रेजों की हुकूमत में. नहीं, जो इसमें आपको मेरी लगता बात नहीं का पता, जवाब- आप तो पूछ रहे हैं कि वहाँ कहाँ अंग्रेज थे? अंग्रेज नहीं, अंग्रेज वहाँ मिर्जा साहब की गलियों में, कादियान में, पंजाब सूबे में आबाद थे, रहते थे. कैसी और बात कर कहाँ रहे रहते थे? और कहाँ रहते थे वो? मिर्जा साहब का पहरा अंग्रेज फौजी मुकर्रर किया हुआ था, और पुलिस वाला अंग्रेज ने मिर्जा साहब का पहरा देता था घर के बाहर। इनका म्यार देख लें, जहाँ मिर्जा साहब पैदा हुए, इनका मतलब है कि वहाँ स्कूलों में हर जगह अंग्रेज पढ़ते रहते थे, और कौम अंग्रेज थी. अंग्रेज ही सबको पता अंग्रेज है थे, और कौन थे? बर्रे सगीर में अंग्रेज बाहर से आए हैं. ये जो ओ भाई इंडिया- जहां से भी आए हैं, मिर्जा साहब तो उनमें आए हैं ना, वो बाहर से कौमें आई हैं। मक्का शरीफ में सारी कौमें उधर ही पैदा हुई थी हमेशा से, उधर भी बहुत से बाहर से लोग आए थे। वहाँ 5 करोड़ 2 अरब या जितनी भी आबादी थी उस वक्त, 50 करोड़ जितनी भी थी, उसमें अंग्रेज कितने थे? 10 लाख थे, 5 लाख थे, 2 लाख थे, कितने थे अंग्रेज? ओ भाई जितने भी होंगे उधर मौजूद थे ना अंग्रेज। अब मैं कहूँ कि रसूल के वहाँ अरबी बोलते, वहाँ कुछ लोग जो थे अबरानी भी बोलते थे. मैं कहूँ कुछ लोग साबित करें तो आप साबित कर दें कि पंजाब के जहाँ वो मैंने पैदा तो हुए हैं, साबित कर दिया, आपने खुद करार कर लिया कि अंग्रेज थे। अब सारी दुनिया जानती है अंग्रेज थे, ये तो कल की बात है। आप पता क्या कह रहे हैं? आप पता अंग्रेज क्या तो कह गया रहे हैं? यहाँ से 1947 में। हाँ जी, आप पता क्या कह रहे हैं कि वो जो इंडिया है, जो हिंदुस्तान बरे सगीर था, वो अंग्रेजों का था. अंग्रेजों के स्कूल, अंग्रेजों की हुकूमत, अंग्रेजों की जुबान, हाँ जी, अंग्रेजों की तलीम, बिल्कुल यही कह रहा हूँ। अंग्रेजों के स्कूल थे, अंग्रेजों की जुबान थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी, सारा कुछ अंग्रेजों का था। बिल्कुल यही कह रहा हूँ। नहीं, हुकूमत अंग्रेजों की थी, लेकिन उससे पहले सदियों से मुगलों की हुकूमत थी, सदियों से अंग्रेज. भाई सदियों पहले मिर्जा साहब थे ही नहीं, मैं तो मिर्जा साहब की बात कर रहा हूँ। जब मिर्जा साहब आए, सदियों पहले मिर्जा साहब थे? नहीं, मिर्जा साहब वहाँ पंजाब में रहते थे, जो अंग्रेज हैं. नहीं, मिर्जा साहब अमेरिका में रहते थे, पंजाब में ही रहते थे। यार मिर्जा साहब पंजाब में रहते थे, वहाँ अंग्रेज क्या लेने आ गए? आबादी में तो नहीं थे ना उनकी. और अंग्रेज पहाड़ों में रहते थे, अंग्रेज पहाड़ों में रहते थे यार. किधर रहते थे मुसलमान, अंग्रेज? सबसे पहली बात तो ये है कि अंग्रेजों ने इस्लाम को बिगाड़ा था ना, आके लोगों को ईसाई कुरान दी गलत तशरीह। रहते नहीं थे, उनकी हुकूमत थी। हमने ये तो पूछा ही नहीं है किसने बिगाड़ा था, किसने नहीं बिगाड़ा था। सवाल तो ये है कि आपने अंग्रेज कहा, भाई, इनका जवाब देख लें. आटे में नमक बराबर वहाँ अंग्रेज साबित करके कह रहे हैं कि अंग्रेज वहाँ थे, फिर इंग्लिश आटे में नहीं नमक बराबर थे। नाउज़ बिल्लाह. अच्छा, आटे में मैं नमक बराबर थे, अहमद भाई एक मिनट अभी कह रहे थे कि वहाँ कहाँ अंग्रेज हैं, अब आटे में नमक के बराबर आ गए हैं। अहमद भाई आप एक मिनट रुके. मैं डेरिंग भाई, आप जो कह रहे हैं ना कि देखिए अगर वहां पर अंग्रेज थे, हुकूमत तो अंग्रेजों की थी. आप तारीख पढ़ लें, 1834 में आप चले जाएं तो ये जो कादियान है, ये बेसिकली पंजाब का एक इलाका है, और उसकी जो रूट्स हैं, चूंकि हम पंजाबी, आप भी पंजाबी, जो रूट्स हैं बेसिकली, तो रूट जो है वहां पर वो बेसिकली तो पंजाबियों की रूट है. तो अगर ये एलिगेशन हम दें कि नहीं वो अंग्रेज थे वहां पे, तो अंग्रेजों ने टेक ओवर किया था, आप ये कह सकते हैं. तो अब ये इस दलाइल में कोई इतनी जान है नहीं, मुझे लगता है कि इसको किसी और टेक ओवर करके आए हो. मैं बात करता हूँ, टेक ओवर करके आए, सबको पता है. लेकिन जब मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा किया, वहां पे वो कौम थी जो इंग्लिश बोलती थी. असल मामला ये है. और मिर्जा साहब की सारी किताबें पढ़ के देखें, मिर्जा साहब ने कहा हुआ है कि मैंने अंग्रेज के हक में इतनी, चुप कर जाना. मिर्जा साहब कहते हैं मैंने अंग्रेज के हक में इतनी किताबें लिखी हैं कि 50 से अलमारियां उससे भर जाएं. और मिर्जा साहब की तो किताबें भरी पड़ी हैं, अंग्रेज हुकूमत से मुखातब हो रहे हैं, उनके कसीदे गा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं. तो मिर्जा साहब का तो दावत और तबलीग का ज्यादातर काम ही अंग्रेजों के साथ नजर आ रहा है. उनकी सारी किताबें पढ़ के देख लें. ये तोहफा कैसरिया किसके बारे में लिखी है मिर्जा साहब? अब मिर्जा साहब चूंकि उधर अंग्रेज थे और मिर्जा साहब वहां उनको तबलीगें भी करते फिरते हैं, तो मेरा सवाल ये था कि कुरान तो कहता है कि नबी को भेजा जाता है उसकी कौम की जुबान में, तो इंग्लिश आती थी मिर्जा साहब को?
उनकी कौम टेक ओवर करके कौम आई थी जी, जैसे भी आई थी, ये नहीं सवाल है। वो सलमान फारसी की नस्ल से हैं, वो फारसी थे, वो पंजाबी बोलते थे, पंजाब था, उनकी कौम ही नहीं है। कितना बेहुदा जवाब है यार। अवैस भाई आपका दिल भाई अंग्रेज वहां पे मौजूद थे, कहाँ उनके घर के पास क्या बार चारपाई पे बैठे थे? कैसी बात कर रहे हैं? उनकी अहमद भाई, चंद जो अहमद भाई एक मिनट, अहमद भाई एक मिनट, कूल डाउन हो जाए। कल पे ना इजी हो गया, अहमद भाई बात करते हैं इजी हो के। यार डेरिंग भाई, ये जो आप बात कह रहे हैं ना, देखें ये मुझे लग रहा है इसके अंदर कोई इतनी जान नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं ज़िया भाई, यार वो तो चलें ठीक है, हिंदू थे वहाँ पे, हिंदू थे। मेरी बात सुने, मैं पैदा होता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पैदा होता हूँ अमेरिका के अंदर, ठीक है, मैं हूँ पाकिस्तानी, मेरा माँ बाप वहाँ पे गया हुआ और अमेरिका में पैदा होता हूँ। अब वहाँ पे हुकूमत है, मुझे पूछे यार तुम्हारी कौमियत क्या है, तो मैंने रहना तो पंजाबी है, मेरा माँ बाप चूंकि पंजाबी है तो उन्होंने रहना पंजाबी है। आपने पंजाबी रहना है, आपने पंजाबी रहना है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला रसूल को उसकी कौम की जुबान में भेजता है। अब जहाँ मिर्जा साहब पैदा हो रहे हैं, उनके पैदा होने से लेकर उनके फौत होने तक वहाँ पे अंग्रेज रहे हैं। उनकी कौम, उनके इर्द गिर्द के लोग अंग्रेज थे। कौम का मतलब ये नहीं है कि भाई आपकी ज़ात कौन सी है, आपकी ज़ात कोई है तो आप चले जाएं जनाब किसी दूसरे मुल्क में, वहाँ पे लोग कोई और ज़ुबान बोलते हैं तो आप पीछे वाली। अब कौम आपकी है जी मुगल बरलास, आप इंडिया में पैदा हुए हैं, यहाँ पंजाबी बोलते हैं। आप चले जाएं अफ्रीका में, अफ्रीका में जाकर नबूवत का दावा कर दे और वहाँ पंजाबी बोलनी शुरू कर दें, कहें जी अल्लाह ने कुरान में कहा है कि उसकी कौम की ज़ुबान में भेजता हूँ, तो मेरी तो चूँकि कौम पंजाबी है। नहीं, कौम का मतलब है कि जिन लोगों के दरमियान अल्लाह ताला ने उस रसूल को मबूस फरमाया, जिन लोगों को उस रसूल ने तबलीग करनी है, उसको कौम अल्लाह ताला ने कहा है। ये नहीं कि पीछे से जात कोई और है, बंदे अंग्रेजों में चले जाए, वहां जाकर पंजाबी बोलनी शुरू कर दें। अवैस भाई सिंपल सा कुलिया है। देखें, जब वजीर आजम बनता है तो कम अज कम उसको जीतने के लिए 51% वोट चाहिए होते हैं, ऐसे ही है ना, कम अज कम भी। अब मुझे साबित कर दें कि वहाँ कादियान में 51 नहीं, अगर 10,000 की या 20,000 की आबादी है, मुझे 20 घर अंग्रेजों के शामिल कर दें, 20 घर 10 घर बता दें। कैसा अजीबो गरीब बात है। मैं आप इधर वोट डालने शुरू कर दें, आपका दिल मानता है कितने परसेंट पे बनता है उतने परसेंट अल्लाह ताला ने फरमाया है। कहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कहीं पे कि भाई इतने परसेंट होंगे तो फिर उसकी जुबान में मैंने भेजना है, अपनी तरफ से छोड़ी जा रहे हैं। नहीं, वो उधर हमारी तरफ स्मोक आई हुई है काफी दिनों से, मुझे गले में खराश है स्मोक की वजह से, तो पानी का कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब आगे ये इनके पास, बेचारों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अब सवाल इसका ये था, जबान नहीं बोल सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते थे, लेकिन ये इन्होंने अपनी बात भाई हम तो ये टॉपिक नहीं है, हम हरगिज ये नहीं मानते, ये टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक डाइवर्ट होगा। हम तो मानते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने हर जुबान पर उनको महारत दी थी, हर कुछ सब कुछ वो बोल सकते थे। नऊज़ बिल्लाह। अवैस भाई मैं ये अलग टॉपिक है, लेकिन आप अभी उसी बात पे रहें, उसी बात पे आप, ये अलग टॉपिक है, इस पे मैं बहस में जाने नहीं चाहता आपसे। आप कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना पढ़ना नहीं आता था, और उस पे सवाल ये कर रहे हैं कि क्या जो सहूलत अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं दी, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दे देंगे? ये आपका सवाल है, यही सवाल है, मैं ठीक समझाऊं? पीछे चलेंगे, मैं ठीक समझाऊं? ऊपर साहब पीछे चलेंगे वो, ये एतराज ये कर रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। एक छोटा सा सवाल है इसी मौजू पे। जी जी, कि नबी पर अल्लाह ताला उसी कौम में नबी क्यों भेजते हैं, उसी कौम में जिस कौम की जुबान पे होते हैं नबी क्यों भेजते हैं? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, क्यों भेजते हैं? क्योंकि वो लोग गुमराही पे होते हैं और उनको ठीक करने के लिए भेजता है ताकि वो समझ सकें उसको अच्छे तरीके से। लेकिन उसी कौम की जुबान में क्यों भेजते हैं? क्योंकि वो समझ सके ना, उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग, ताकि अल्लाह ताला जो इल्हाम करें, जो अल्लाह ताला जो उन पे वही करें, वो उसी कौम की जुबान पे हो। ऐसा तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि जुबान उनकी है अरबी और इल्हाम हो रहा हो जापानी। आपको अगर कोई ऐसी मिसाल मिली है तो आपको मेरा जवाब समझ आ गया होगा। ठीक है भाई, वो ले यही बात मैं कह रहा था कि कौम की जुबान में भी वही होती है कि कौम उस वही को भी समझ सके। जी भाई, वो वही का ताल्लुक लाजमी है। ज़िया भाई बैठे हुए हैं, कौम की जुबान से होता है, यही बात बशीरुद्दीन महमूद साहब ने लिखी है। ये बिल्कुल 100% यही बात है, यही बात ये उस कौम की जुबान में भेजने का ये मतलब नहीं है कि नबी को ही वो जुबान आती है और उस पर वही किसी और जुबान में होती है। ये वो वही जो होती है ना, वो उस कौम की जुबान होती है कि वो कौम वही भी उस कौम की जुबान में होती है, नबी भी उसी कौम की जुबान में होता है। दुनिया में और भी जुबानें सर अगर इजाजत हो तो थोड़ी सी बात मैं कर लूं? जी आग भाई बोलें।
डॉक्टर डेरिंग साहब आपसे बात करनी है मैंने। जी जी ठीक है, और ज़रा गौर से सुनिएगा, इतनी लंबी चौड़ी बहस की वैसे ज़रूरत नहीं थी। आप मोतबर हैं, ठीक है। आहिर भाई आपकी भी तवज्जो चाहूँगा, अली भाई आपकी भी तवज्जो चाहूँगा। एक सादा सा फार्मूला है, बिल्कुल सादा सा, और मैं इस ताबूत में आखिरी कील बड़ी देर पहले का ठोक चुका हूँ। अहमद अप्पल साहब जहाँ अब्दुर्रहमान जामी हो ना, वहाँ से गायब। ठीक, सुन ले ज़रा, ये डॉक्टर डेरिंग साहब बड़े गौर से सुनिएगा। एक कुलिया इन्होंने कहा, मैंने लिख लिया, इन्होंने कहा कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान इब्रानी थी। सही है, मैंने लिखा है और रिकॉर्ड भी है। मैं बिना हीलो हुज्जत तस्लीम करता हूँ, हालांकि मेरा बनता है इनसे मैं हवाला मांगूँ, लेकिन जाओ जी, इनको छुट्टी है। बिना हीलो हुज्जत मैं मानता हूँ कि इनके अल्फाज बिल्कुल सच्चे हैं। ठीक है, अब मेरा इनसे सिर्फ एक सवाल है, क्या ये मिर्ज़ा साहब को वही ईसा इब्ने मरियम मानते हैं जिनकी ज़ुबान ये इब्रानी कहते हैं? अगर ये कहते हैं हाँ, तो फिर सीधी सी बात है, मेरा इनसे एक ही सादा सा सवाल होगा। अगर आप इन्हें वही ईसा इब्ने मरियम मानते हैं जिनका अभी आपने कहा उनकी ज़ुबान इब्रानी है, और वो आए पंजाब में और उनकी ज़ुबान होगी पंजाबी, मुझे काइंडली ज़रा पूछ के बता दे अपनी जमात से कि वो कौन सा फार्मूला अल्लाह ताला ने यूज़ किया जिसके तहत मिर्ज़ा साहब की ज़ुबान इब्रानी से पंजाबी हो गई। जो फार्मूला आप कहेंगे ना कि इस फार्मूले के तहत अल्लाह ने ये फार्मूला यूज़ किया, सुन लें हमारा जवाब ज़रा। जिस वक्त असली ईसा इब्ने मरियम आएंगे ना, जो फार्मूला, जिस फार्मूले से आपके कहे मुताबिक इब्रानी ज़ुबान से पंजाबी होगी, क्योंकि वो पंजाबी कौम में है, उसी फार्मूले के तहत असली ईसा इब्ने मरियम जब आएंगे ना, उनकी ज़ुबान इब्रानी से बदल कर उस वक्त की मौजूदा कौम के मुताबिक हो जाएगी। ख़त्म। या तो ये कह दे कि हमें वो ईसा इब्ने मरियम मानते नहीं है, इतनी सी बात, ख़त्म। अहमद साहब गल मुक गई। या तो तुसी कहो कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਬਰਾਨੀ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹੀ ਫਾर्मूला ਅਸੀਂ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे अप्लाई करते हैं। मैं एक बात करता हूँ। बात यह है कि इब्ने आदम भाई, AR के भाई, नईम भाई, डेरिंग भाई, आप सब लोग मेरी सर आंखों पे, मसला ये है कि ये मेयार नहीं है कि एक बंदा जो है वो 4-4 लोगों का अलग अलग सवाल का जवाब दे, ये कहीं भी मेयार नहीं है। ये तो नौबत साहेब, आप बात फिर गलत कर रहे हैं। ये 8-8 बंदे बैठ के हमसे सवाल करते हैं, आप जुम्मा 8 दिन हुए, बड़ी माजरत, आप मुझे नीचे उतार दीजिए। आपको वो नहीं नजर आता? आप मुझे गलत बयानी कर रहे हैं। इनसे पूछें, रिकॉर्डिंग्स पड़ी इनके पास। 8-8 बंदे बैठ के जो है वो हमसे सवाल कर रहे होते हैं, और हर बंदे का सवाल की नौयत बदली होती है। आज हम अगर लॉजिकल बातें कर रहे हैं तो आप माशाल्लाह आपको इंसानियत याद आ गई है, आप पकड़े मुझे नीचे फेंक दे। AR के भाई, बात वो होती है जो हो। इन साहब ने कोई आयत पेश की है, अभी कोई लगाया स्कैन? मैंने 2 हरफी बात की है। मोहतरम सुन लें, मैं म्यूट कर रहा हूं। इसके बाद जिस फार्मूले पर आपने कहा 2 चीजें हैं, मेरे पास रिटर्न में मैंने लिखा है और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। आपने कहा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान इब्रानी थी। मैं बिना हवाले के आपसे कह रहा हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, हालांकि मेरा हक बनता है। दूसरा नुक्ता, आप मिर्ज़ा कादियानी को या मिर्ज़ा साहब को, जो भी मुनासिब अल्फाज हैं, वही ईसा इब्ने मरियम मानते हैं जिनकी ज़ुबान आपने कहा इब्रानी है? अगर तो आप नहीं, वो वाला नहीं मानते, तो भाई हमारा झगड़ा ही ख़त्म हो गया। और अगर आप वो मानते हैं तो ये मेरा सवाल है आपसे, आपकी जमात से, आपके खलीफा से और मिर्ज़ा साहब से, कि वो हमें जवाब दें कि इब्रानी ज़ुबान से, उनकी ज़ुबान पंजाबी थी, कौम की ज़ुबान पंजाबी थी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, सच कह रहे हैं आप। लेकिन इब्रानी ज़ुबान से उनकी ज़ुबान पंजाबी किस फार्मूले के तहत अल्लाह ने बदली है, वो फार्मूला आपने बताना है। जो फार्मूला आप लेकर आएंगे ना कि अल्लाह ताला ने इस हिकमत अमली के तहत, इस फार्मूले के तहत, इस कायदे कुलिये के तहत बदली है ज़ुबान, ठीक है, हम वही उठाएंगे फार्मूला और आपसे वही हमारा जवाब होगा। अहमद भाई आप खामोश हैं। अहमद भाई नहीं लें, अहमद भाई आप 1 मिनट खामोश जवाब देना। अब
नौबत साहेब लॉजिकल सवाल किया है, इस लॉजिकल सवाल का फार्मूला मुझे ले दें, हम वही फार्मूला उठाएंगे और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पर अप्लाई करेंगे। जिस तरह मिर्ज़ा साहब की ज़ुबान इब्रानी से पंजाबी होगी क्योंकि कौम की ज़ुबान पंजाबी थी, उसी फार्मूले पर जब असली ईसा इब्ने मरियम आएंगे तो मोहतरम सेम फार्मूले पर जिस तरह मिर्ज़ा साहब की ज़ुबान इब्रानी से पंजाबी हो गई, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की भी ज़ुबान वही हो जाएगी जो उस वक्त कौम की है। ख़त्म। ये मुझे वो फार्मूला दें अब, और मैं इनको खुली छोड़ देता हूँ कि दुनिया के किसी स्क्रिप्चर से ले आएँ, किसी अखबार से ले आएँ, किसी रद्दी से ले आएँ, किसी मुबारक कुरान या कोई मुबारक स्क्रिप्चर से ले आएँ जो लोगों के लिए मुबारक होता है, मैं इनको खुली छूट देता हूँ। लेकिन अब ये मुझे वो फार्मूला देंगे कि किस फार्मूले के तहत इब्रानी से पंजाबी हो गई, तो वही फार्मूला हम असली ईसा इब्ने मरियम पर लगा देंगे। ले अहमद उपल साहब जवाब मिल गया, हुण तुहाडी वारी जे कि फार्मूला कड्डो ते दहाओ इब्रानी तो पंजाबी किवें होई। अच्छा अली भाई क्या कह रहे हैं आप? जी मैं गुजारिश कर रहा था कि सारे दोस्त अहबाब तशरीफ फरमाए और हम सब में हमारी खुशकिस्मती है कि ज़िया रसूल अमीनी भाई तशरीफ फरमाए। तो सच्ची बात है कि इनको सुनने का बड़ा दिल करता है। तो मेरी तो गुजारिश होगी कि ज़िया भाई जब तक मौजूद हैं बाकी दोस्त काइंडली अपना माइक म्यूट रखें। बहुत शुक्रिया वैस भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली भाई, यही बात है। अहीर भाई आपकी मैं मेहरबानी। माजरत चाहता हूँ, मैं अब म्यूट करूँगा, लेकिन ज़िया और रसूल अमीनी साहब आपको मैंने सुना हुआ है, आपका बड़ा नाम भी सुना हुआ है। मोहतरम मैं आपकी बारगाह में ये गुजारिश करता हूँ, हालांकि मैंने अहमद साहब से डायरेक्ट सवाल किया है, अगर ये मुझे नहीं देते तो आपका मुतालबा भी यही होना चाहिए। नौबत साहब माजरत मेरी, मैं असल में वॉक भी साथ साथ कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा वॉक का टाइम है तो थोड़ा ब्लड प्रेशर ऊपर होता है। अहमद साहब वो फार्मूला, और डॉक्टर साहब, डॉक्टर डेरिंग साहब, मुझे आपका असल नाम नहीं पता। माइक ओवर टू यू। मैं और कोई बात नहीं करूंगा, आपका मुतालबा भी मैं गुजारिश करता हूं कि होस्ट का सबका यही होना चाहिए, वो फार्मूला ला कर दें मुझे। इनकी जुबान वाला किस्सा तो आज खत्म करें। अहमद भाई, अहीर भाई आप जरा अनम्यूट करेंगे प्लीज। माइक ओवर टू यू गाइस। सर मेरे पे तो इल्हाम हुआ है कि अहीर खामोशी इख्तियार करेगा इस मौके पे। नहीं आपकी मेहरबानी, इसका मुझे जवाब दें कि मैं इब्ने आदम का सवाल लूं, आरके का, ARK भाई का सवाल लूं या डेरिंग का सवाल लूं? आप मुझे बताएं मैं क्या करूं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, मेरी जरूरत है भाई पता नहीं माशाल्लाह आप मैच्योर हैं, खुद ही देखें आप मामलात को। मैं तो जब भी मुसलमानों की बात आपस में एक दूसरे को शुरू हो जाती है, आपका भाई खामोशी इख्तियार करता है। मेरा सवाल भी रहने दें, आप जो सवाल चल रहा है जो टॉपिक उसी पे चल रहे हैं। मेरा सवाल इसी था। डॉक्टर डेरिंग साहब का ले लूं मैं सवाल? जी उनसे लीजिए। अच्छा मादरत के साथ अवैस भाई, मैं ना कुछ मिनट नहीं था, मैं कॉल आ गई थी मेरी, तो अगर कुछ बात आपने समझानी तो कर सकते हैं। बात ये समझानी है कि अभी ये डॉक्टर डेरिंग, मैं इनसे पूछ रहा था, क्लैरिफिकेशन ले रहा था इनके क्वेश्चन की कि क्या इनका सवाल यही है कि जो सहूलत इनके बकौल, हमारा मुसलमानों का ये मानना नहीं, इनके बकौल जो सहूलत यानी कि एक से ज़ायद ज़ुबानें जानना, लिखना, पढ़ना अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दी, इनके मुताबिक वो क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दे देंगे? क्या यही एतराज़ है आपका? मुझे क्लियर कर दें। जी अहमद भाई बता दें, यही एतराज़ है आपका? अवैस भाई पता क्या नापसंद फरमाया गया कि इंसान कज ऐसी करे। मेरा ख्याल है मुझे मेरा जवाब मुझे मिल गया, मैं लाजवाब हो गए हैं, उनके पास इस चीज़ का जवाब नहीं है। आपने भी गवाही दे दी है और मैंने आपको तफसील भी बयान कर दी। इस पे मज़ीद बात हो नहीं सकती। कौम में जो नबी आता है ज़बान वही बोलता है। हाँ ARK भाई का जो सवाल था मैं अधूरा सा सुना है क्योंकि मेरी कॉल आ गई थी, तो उन्होंने नहीं आप अहमद भाई आप भी इधर उधर ना जाएं। देखिए मैंने अगर सबको रोका है और मेरे सवाल का जवाब दें, मेरे सवाल का जवाब दें। ज़िया रसूल भाई की आपका एतराज़ यही है कि आपके बकौल अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना तो कोई और ज़ुबान, किसी और ज़ुबान का इल्म दिया, ना उनको लिखना पढ़ना आता था आपके बकौल, और आप कह रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो वो तो और ज़ुबानें, चूँकि यहाँ लोग बोलते हैं तो उनको और ज़ुबानें भी आ जाएंगी। अगर ऐसा समझा जाए तो आपका क्या ये एतराज़ है कि जो सहूलत यानी ज़ुबानें जानने की, लिखने पढ़ने की अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दी, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दे देगा? ये एतराज़ है आपका?
मुझे लगता है हमारी डिस्कशन क्लोज हो गई, अब पता नहीं कोई नया सवाल करना तो कर लें। भाई ये इसी सवाल पे ही तो आपने यही तो सवाल किया था, अब क्यों आप घबरा रहे हैं इसको क्लियर करते हुए? नहीं घबरा, आप यार कैसी बातें कर रहे हैं वेस भाई? जवाब मिल गया, कुरान की आयत का जवाब। इन्होंने ये बात की थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वही ज़बान बोलेंगे जहां आएंगे, यानी ऐसा जवाब दिया जो पहले शाह साहब ने नहीं दिया था। शाह साहब ने पता क्या जवाब दिया था? वो अरबी बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब उनकी प्रेडिक्शन में सुन लेना, वो कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगा, देखें ज़िया रसूल भाई ये कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगा है कि जैसे हम लोगों ने मुकाम कम कर दिया, क्योंकि हमने ये कहा कि वो मुकाम ज्यादा कर दिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो ये बात कह रहे हैं, आप यही बात कहना चाह रहे हैं, वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे दें हाँ या ना में, इसमें कोई लंबी चौड़ी तो बात है नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुकाम इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि बनी आदम ने मुझे गाली दी। कि गाली क्या है? कि ईसा को मेरा बेटा बना दिया। ये लोग डायरेक्टली बेटा नहीं मानते, हमें तकलीफ होती है। ये कहते हैं कि बाकी सारे काम वही मानते हैं जो ईसाई कहते हैं कि आसमान पे भी जा सकता है, जिंदा भी रह सकता है। कुरान की आयत के खिलाफ है। ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है मेरा, वो मैं भी बता दूंगा फिर मिर्जा साहब क्या क्या मानते थे उनको। यार एक मैं बता दूंगा मिर्जा साहब अपने आप को क्या क्या मानते रहे। आप क्यों उधर जा रहे हैं? आप अल्लाह के पैगंबरों पे बात करें, हम सुने चुप करके। आप मिर्जा साहब का नाम लेते तो मिर्जा साहब शुरू हो जाती है आपकी। अहमद भाई छोटा सा सवाल रखा है उन्होंने, छोटा सा सवाल रखा है, आप उनको जवाब दे दें, उनको बता दें आप यही कहना चाह रहे हैं ना। आपने जो कहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ज्यादा लैंग्वेजेस, हम कह रहे हैं कि आप वो आएंगी तो उनको ज्यादा लैंग्वेज है, उनका मुकाम बढ़ा दिया है। हम लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुकाम बढ़ा दिया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये कहना चाह रहे हैं ना ज़िया रसूल भाई को। इसको हाँ या ना में जवाब दे दें, बस बात खत्म। अवैस भाई उस वक्त भी मैंने यही कहा था, तो उनको मतलब समझ अब जाके आई है। हाँ है, मैं यही कह रहा हूँ कि वो कैसे कह सकते हैं कि उनको आप ठीक है जी, ठीक है जी, ये इनका जवाब हाँ है। और इसका मतलब है कि ये इससे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बढ़ जाती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हालांकि मुसलमान ऐसा नहीं समझते, कतअन ऐसा नहीं समझते, ना ये कोई फजीलत का म्यार है। ठीक है, अब मैं आपको पूछता हूँ, अब आप मुझे बताइएगा, मिर्जा साहब को उर्दू जुबान आती थी? मुझे पता चल गया था मिर्जा साहब। अच्छा क्यों मिर्जा, आप फिर मिर्जा साहब को अफजल मानते हैं? आपका फार्मूला है, आप यहाँ या तो इकरार करेंगे या आप अपने इस फार्मूले से माजरत करेंगे, या इकरार करेंगे कि हम मिर्जा साहब को। अब माइक बंद करें अपना, अब माइक बंद करें अपना, माइक बंद करें अपना, माइक बंद करें, मेरी बात पूरी करते हैं, सवाल ये गलत बात है, बीच में आप दरमियान में बोल रहे हैं, अब आप बोलेंगे बीच में? नहीं मैं नहीं बोलता, सिर्फ इतना बता दो। हाँ, बंद करें ना माइक, बंद करें। सब लोग लैच अभी पता चलता है ना, मिर्जा साहब की बारी आती है तो चीखें निकलती हैं आपकी। अहमद भाई पूछने तो दें, अहमद भाई पूछ तो लेने। सवाल ये है कि सारे लोगों ने सुना, माइक बंद करें। इतने लोग सुन रहे हैं बराड़ पे बैठे हुए, 71 लोग बराड़ पे सुन रहे हैं, सब के सामने ये अहमदी जो मुरब्बी साहब हैं, उपल साहब, इन्होंने कहा कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये माना जाए कि जब वो नाज़िल दोबारा आएंगे तो वो मुख्तलिफ ज़बानें जानते होंगे तो सब लोगों से कम्युनिकेट कर लेंगे, तो कहते हैं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी गुस्ताखी है कि उनको तो इतनी ज़बानें अल्लाह ताला ने नहीं सिखाई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सिखा दी। ये इनके नज़दीक बहुत बड़ी गुस्ताखी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कि मुसलमानों के नज़दीक ऐसा नहीं है। अब मेरा इनसे सवाल है, मिर्ज़ा साहब को उर्दू ज़बान आती थी, पंजाबी आती थी, अरबी आती थी, थोड़ी बहुत मिर्ज़ा साहब इंग्लिश भी बोल लेते थे, थोड़ी बहुत मिर्ज़ा साहब क्या अच्छी खासी हिंदी भी बोल लेते थे। अब मिर्ज़ा साहब को 4-5 ज़ुबानें आती थीं। मिर्ज़ा साहब लिखना जानते थे? हाँ जी जानते थे। पढ़ना जानते थे? हाँ जी जानते थे। मिर्ज़ा साहब माड़ी चंगी इंग्लिश भी पढ़ लेते थे, हिंदी भी पढ़ लेते थे, फारसी भी पढ़ लेते थे, फारसी भी मिर्ज़ा साहब को आती थी। मिर्ज़ा साहब लिख भी लेते थे, अरबी भी लिख लेते थे, फारसी भी लिख लेते थे, उर्दू भी लिख लेते थे, पंजाबी भी लिख लेते थे। या तो ये बंदा इधर आज इकरार करे अपने फार्मूले के तहत कि हम मिर्ज़ा साहब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल मानते हैं, नऊज़ुबिल्लाह, तो सबको पता चल जाएगा कादियानियत का अकीदा क्या है। अगर नहीं ये कहते कि हम ऐसा नहीं मानते, तो जो इन्होंने गलत फार्मूला गढ़ के इसको गुस्ताखी कहा है उस पर माजरत करें। ठीक है, अब भाई हमने यहाँ से ना आगे नहीं जाना जब तक हमने ना इसकी चीज को क्लियर नहीं कर लेना, कोई और बोले भी ना और कोई और बाद में ना करे। अहमद भाई ये बताएं, ये जो फार्मूला आपने पेश किया है, इस फार्मूले के तहत मैंने सुन लिया, अवैस भाई मैंने सुन लिया। देखें, इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, मैंने सिर्फ उसको वेरीफाई किया है, मैंने सिर्फ बताया है कि आपने कहा क्या है, तो मैं किस चीज़ की माजरत करूं? मैंने इनको होश दिलाई, भाई होश पकड़े, क्या कह रहे हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आप रुतबा दे रहे हैं, मैंने सिर्फ इतना कहा है। तो इसमें